प्रधानमंत्री चोर है करके कहते हो, ये गलत, ये सही है क्या? अब सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगते हो। फिर ये कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से चुनाव का स्तर नीचे गिरा दिया। चुनाव के प्रचार के मोड में जब प्रचार में कोई अटैक करता है, झूठी टीका टिप्पणी करता है, तो उसके जवाब में दूसरा आदमी भी कुछ ना कुछ कहते रहता है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब चर्चाओं के निर्णय होते हैं और आज भी हम अपनी बात को कहते हैं। वहाँ उड़ीसा, बंगाल और केरल में हमारी सीटें बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मेजोरिटी मिलेगी और मोदी जी हमारे नेता है, वही देश के प्रधानमंत्री होंगे। न मेरा प्रधानमंत्री बनने का कोई एजेंडा है, न मेरी इच्छा है, न मैं कोई सपना देखता हूँ। Only 13 days to go. कौन बनेगा प्रधानमंत्री? Definitely, I am confident that Modi ji will be the new Prime Minister, and we will get reasonably good majority, and the response which is already from the people by and large. I am confident that we will have a BJP government, NDA government, with full majority under the leadership of Modi ji. You made an interesting comment. You said reasonably good majority. Now you're known for being a very candid politician. You don't hide your views. Do you think that today, even though the opposition is divided, it has managed to put up a good fight against the BJP and made it a more challenging election than you would have thought even 2 years back? No. Actually, my feeling is the basic capital for the opposition party was fear. And one of the reason is the Modi ji's leadership and BJP government work. We are becoming strong, and that is the reason that all small parties and weak parties, they come together. It is because of our more strength. And the second thing is, what my feeling is, that the way in which the 5 years of BJP government, NDA government under the leadership of Modi ji, you can compare it with the 50 years of the Congress party, our performance is good. And that is the reason that the majority people, they want to support us. And I am confident that definitely we will get good majority. Do you think you will be more dependent or possibly you would need the help of friends and allies in forming a government? What are the present friends which we have already have as a NDA, we will get the majority. With them? Yes. But on your own? On our own also we will get the majority, but their support is also equally more important. And we are making a government, NDA government, not BJP government. You're making an NDA government, not. That's a very telling comment to make, because are you suggesting then that you're being pragmatic, that the BJP will lose some seats and will need the help of its allies? No. If suppose BJP will get, I am confident we will get the more seats as compared with the past. More still, seats? Yes. Still, if we are getting majority on our own, still we will consider it as an NDA government and our NDA partners, and we will take them with the government. And we will run the government. But Gadkari ji, ये सीट कहाँ से आएगी? मतलब if you could break that up for us. If you look at the states where the BJP did very well last time, चाहे आप UP देखें, which was more than 70 seats out of 80, 25 out of 25 in Rajasthan, 27 out of 29 in MP. Is it possible to repeat that and do better than that? Because that seems unlikely. मैं आपको बताता हूँ, उड़ीसा, बंगाल और केरल में हमारी सीटें बढ़ेगी, तमिलनाडु में कुछ सीटें मिलेगी, हाँ, और उत्तर प्रदेश में जैसा आपको लगता है वैसा नहीं होगा। हम पिछले बार जैसा है, फिर से हमको बहुत बड़े प्रमाण पर उत्तर प्रदेश में पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। देखिए, राजनीति में 2+2 4 कभी नहीं होते। मतलब आप कहते हैं अरिथमेटिक ही सब कुछ नहीं है। 71 में इंदिरा जी के खिलाफ सभी पार्टी एक आए थे, पर जीत गए इंदिरा जी। अगर उनके वोटों की बेरीज करते तो वो नहीं जीत सकते थे। तो आज जो लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कि बीएसपी और एसपी दोनों के वोट शेयर को ऐड करके फिर बात करते हैं, ऐसा होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। बाईपोल में तो हुआ था। हाँ, बाईपोल्स में तो हुआ था, जैसे गोरखपुर और फूलपुर में। कभी होता भी है, कभी नहीं भी होता है, दोनों भी इंसिडेंट्स हैं। पर मुझे लगता है कि इस बार इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि बीएसपी के वोटों को एसपी को डाइवर्ट करना, और उससे भी डिफिकल्ट है कि एसपी वालों ने बीएसपी को वोटिंग करना। इतना आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स है पॉलिटिक्स वहाँ। और इसमें आप जो पकड़ रहे हैं कि 2+2 4 होंगे, 2+2 = 3 होंगे। 2+2 is not 4, it is 3. But Gadkari ji, let me ask you, what is the main issue in this election? Is it national security, nationalism, as Mr. Modi has been talking about extensively in his campaign? Or is it his record, which frankly has been, on issues like the economy, job losses, rural distress, the impact of demonetization? Are people going to vote on these issues or on nationalism and national security? देखिए, 2014 का जो चुनाव हुआ था
उसमें यूपीए के प्रति आक्रोश था। 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, कोलगेट, ये इश्यूज थे, तो उनके प्रति नकारात्मकता थी और मोदी जी के प्रति होप थी। और जब बीजेपी ने अपने नेतृत्व के रूप में मोदी जी को चुना, तो एनडीए को और बीजेपी को चुनने के बाद उनको लोगों के मन में एक होप पैदा हुई कि ये कुछ करेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि ये चुनाव हमने 5 साल में क्या काम किया, कितना काम किया, इसी के पर आधार पर होना ज़्यादा उचित है। और 5 साल में हमने रोड सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में, शिपिंग एंड पोर्ट्स में, इनलैंड वाटर्स में गंगा शुद्ध करके हमने दिखाई, इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, और जो सोशल सेक्टर की हमने स्कीम्स चलाई, गैस सिलेंडर और गैस सिगड़ियाँ दी 7 करोड़ लोगों को। अभी प्रधानमंत्री आयुष्य योजना में हमने 10 करोड़ परिवार को कवर करके 5 लाख रुपए की मदद देने की बात की। जनधन योजना में हमने 3.5 करोड़ खाते थे बैंक के, वो 34 करोड़ किए, 70,000 करोड़ डिपॉजिट आया। प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर के लिए 12 लाख करोड़ की प्रोविजन की। मुद्रा योजना में 3.5 करोड़। तो लेकिन फिर आज इकोनॉमी की हालत आज ऐसी क्यों है? दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। अभी रतिन रॉय हैं, ही इज़ अ मेंबर ऑफ पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उन्होंने एनडीटीवी को अभी 2 दिन पहले बताया दैट वी आर हेडिंग फॉर अ स्ट्रक्चरल स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, वी आर गोइंग टू बिकम लाइक साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, नॉट लाइक चाइना और कोरिया। he's giving you a warning about the economy. आपको पता है कि there is a unemployment report, NSSO की report है, 45-year high of unemployment. Demonetization impact has been recorded by many as being bad at creating, there is rural distress. तो ये सब क्यों हुआ है? ये 5 साल के प्रॉब्लम नहीं है, ये 1947 से लेकर आज 72 साल हुए ये प्रॉब्लम्स आए हैं। और ये प्रॉब्लम इसलिए आए कि रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी। देखिए, ये 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदी किए गए, पर आज गांव को पीने के लिए पानी नहीं, इरिगेशन को प्रायोरिटी नहीं मिली। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के द्वारा करीब 98 प्रोजेक्ट को, जो 50% काम पूरा हुआ है, 25% भारत सरकार से और 75% नाबार्ड का लोन देकर हमने शुरू किया। रिवर कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट के हमने डीपीआर बना के काम शुरू कर रहे हैं। इरिगेशन, पानी, ये बड़ी समस्या है, ध्यान ही नहीं दिया गया। अब मुझे बताइए कि ये जो रूरल एग्रीकल्चर को निगलेक्ट किया, किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। अब इस स्थितियों को सुधारने के लिए 5 साल कम है, हमने पॉलिसी बदली है। अब किसान पेट्रोल डीजल का पर्याय देंगे, बायोप्लास्टिक बनाएंगे। अब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट का समय लगेगा। लेकिन कांग्रेस के ऊपर सारा ब्लेम डालना, इज दैट फेयर? अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल जीडीपी नंबर्स, यू एक्चुअली इनहेरिटेड अ फेयरली हेल्दी इकोनॉमी व्हेन द बीजेपी टुक ओवर। आज जीडीपी डेटा पे ही डाउट हो रहा है। अभी उस दिन रिपोर्ट आई थी कि एनएसएसओ का डेटा है दैट 36% ऑफ द कंपनीज दैट आर यूज्ड टू कैलकुलेट इंडियाज जीडीपी आर डॉजी और दे डोंट एग्जिस्ट। आप उस पे क्या कहेंगे? मतलब इस पे तो अब इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट आर रेजिंग क्वेश्चंस कि हमारा जीडीपी, मुझे नहीं लगता ये 36 वाली बात जो कही गई है, एनएसएसओ का रिपोर्ट है। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि बहुत से बार क्या होता है, देखो, कोई भी कंपनी का टर्नओवर, उसका प्रॉफिट, उसने क्रिएट की हुई एम्प्लॉयमेंट, उसके आधार पर स्टैटिस्टिक्स बनता है। अगर फेक कंपनी होंगे तो कहां से आएगा स्टैटिस्टिक्स? वही तो बात है। उनके नाम पर कुछ ना कुछ टर्नओवर तो होगा, रोजगार तो होगा। बट वो शेल कंपनीज निकली है ना, तो यू डोंट थिंक दैट रेजेस अ क्वेश्चन मार्क ऑन हाउ? आ ही नहीं सकता। बट ये तो आया है रिपोर्ट, ये तो डिनाई भी नहीं किया सरकार ने। दे आर सेइंग दैट वी आर स्टडीइंग इट। ये गलत है, इतना ही मैं कहूंगा। मगर गलत किस बेसिस पे है? क्योंकि जब रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, उसका जो फॉर्मूला है सिस्टम में, उसमें उसका कितना टर्नओवर हुआ, कितना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल मिला, ये सब बातों को टोटल करने के बाद ही आएगा। आप ऐसे गलत कहेंगे, बट जो एनएसएसओ का जॉब्स रिपोर्ट था, 45-year हाई अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट ईयर, तो वो क्या वो भी गलत है? वो भी सरकार ने उस, द गवर्नमेंट सेड दिस इज अ ड्राफ्ट रिपोर्ट। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग अभी काम है, और बैंक्स लिबरली फाइनेंस नहीं कर रही है, और इसके कारण काफी बड़े प्रमाण पर डेवलपमेंट पर, प्रोग्रेस पर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर परिणाम हुआ है, और उसका परिणाम रोजगार पर हुआ है। तो बैंकों के द्वारा ये फाइनेंस करें, इसके लिए रिजर्व बैंक के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सिचुएशन सुधर जाएगी, और फाइनेंस जितना मार्केट में ज्यादा आएगा, उससे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल का रेशियो बदल जाएगा। तो आप मानते हैं दैट देयर इज एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम? देखिए, ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, ये 47 से है। मगर हाँ, ये प्रॉब्लम है,
एग्रीकल्चर क्राइसिस है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। और ये भी बात है कि जैसे स्टील सेक्टर में था कि चाइना में पहले हम लोग बहुत स्टील आता था, हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, अब स्टील सेक्टर अच्छा काम करने लगा। तो जैसे अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, अभी इलेक्ट्रिक पहले बीच में लग रहा था डाउन हो रहा, फिर अप्स एंड डाउन। देखो आप एक देखिए, मीडिया हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। एक सेक्टर डाउन होता है, दूसरा अप होता है, ये तो चलते रहता है। लेकिन आपने ऑटो सेक्टर की बात की। आई जस्ट रीड यू द लेटेस्ट नंबर्स नाउ, just looking at again the last 5 years. Last year the auto sector grew at 14%, and this year 2018-19 it is down to 5%. And you have auto dealerships now saying that we are laying off people, हमने परसों ही इस पे स्टोरी करी है। So what does that tell you? ये तो आप नहीं कह सकते कि it is a Congress legacy, ये तो पिछले साल तो it was doing very well। ऑटो सेक्टर का हर महीने में ग्रोथ बढ़ता है, कभी बदलता है। हाँ, कभी ये 22 तक जाएगा, कभी 14 तक आएगा। ये डिमांड एंड सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, तो एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए हमारे यहाँ से, अब आप ये बता रही है, मुंबई पोर्ट से 2,78,000 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हुई, टुटीकोरिन से 4.5 लाख गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हुई। ये एक्सपोर्ट भी हर साल बदलते रहता है। तो मुझे क्या लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स ऑब्वियस सेक्टर वाइज होते ही है। पर तो फिर रतन रॉय क्यों कह रहे हैं दैट वी आर हेडिंग फॉर अ स्ट्रक्चरल स्लो डाउन? रतन राय क्यों नहीं कह रहे, ये वही बता पाएंगे। मेरे को तो लगता है कि आने वाले समय में जो लॉन्ग, देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस, इमीडिएट, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस हमने लिए हैं उसके फल आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। आने वाले 2 साल में मुझे लगता है काफ़ी इसमें परिणाम आएगा। जो 7.5 एम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो निश्चित रूप से 3 तक आएगा, ऐसा मुझे लगता है। But you don't think that when people go out to vote that this will be weighing on their minds? आपने कहा, you are admitting, you are being candid, you are saying yes, unemployment is an issue, agricultural distress is an issue. You don't think that this will weigh on top of people's minds when they go and vote? मुझे बताइए, पहली बार इरिगेशन में महाराष्ट्र को, जैसे हमारे एग्रीकल्चर क्राइसिस है, पहली बार 18% इरिगेशन है। हमने बड़ी राजा योजना में 108 प्रोजेक्ट, सिंचाई योजना में 26 प्रोजेक्ट, ये 50% जो काम पूरा हुआ उसके लिए पैसे दिए। मैं आपको बताऊं तो महाराष्ट्र का इरिगेशन नेक्स्ट 1 साल 1.5 साल में 48% तक जाएगा। इरिगेशन बढ़ने के बाद नेचुरल एग्रीकल्चर में क्या होगा, वो पानी ड्रिप से जाएगा तो पानी का यूज 3 गुना होगा और प्रोडक्टिविटी 2.5 गुना बढ़ेगी। अब मुझे लगता है इट विल टेक सम टाइम। इट विल टेक टाइम, बट क्या इज दिस द रीजन व्हाई द प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट बीन टॉकिंग अबाउट जॉब क्रिएशन इन हिज रैलीज? मैं आपको आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। वी टुक 35 ऑफ मिस्टर मोदीज रैलीज ओवर 1 मंथ। हमने काउंट किया how many times he talked about Pakistan terrorism himself. उसमें निकला almost 200 times Mr. Modi has spoken about Modi in third person, about 100 times or so about Pakistan. Only 7 times he has spoken about jobs, रोजगार। सिर्फ 7 बार उन 35 रैलीज में उन्होंने रोजगार की बात की है। Is that the reason why? Because there is a crisis. ये चुनाव के पहले स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप, ये सब जॉब रिलेटेड नहीं था। नहीं, तो कितने बार मोदी जी इसके बारे में बात कर चुके हैं, कितने बार कर चुके हैं। आखिर एक सभा में मैंने आपको भी एग्जांपल दिया 35 रैलीज का। एक मैं बताता हूँ, समय समय पर लोगों की भावनाओं में अलग अलग नए नए विषय आते हैं और स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, रीजन टू रीजन विषय बदलते रहते हैं। पर मोदी जी ने आज तक 5 साल में इन विषयों पर कितने बार कहा है? मुझे बताइए, स्किल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी वो ठीक है, लेकिन प्रचार में भी तो करना चाहिए ना। नाउ ही इज कमिंग फॉर री-इलेक्शन, सो व्हाई डजंट ही टॉक अबाउट इट? अब कैसा है कि समय के अनुसार, अभी जैसे ये एयर स्ट्राइक हो गया तो लोगों के मन में ये विषय इंपॉर्टेंट आगे आया, फिर उसकी चर्चाएं हुई, तो इंटरनल सिक्योरिटी की बात उभर के आई। तो कभी ना कभी ये भी बदलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन, उसके भी अलग अलग प्रकार के अप्स एंड डाउन सब्जेक्ट्स के होते हैं, उस प्रकार से बोलते हैं। सो गडकरी जी, लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द कैंपेन राइट नाउ, एंड यू सेड कि इश्यूज डू कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी देखिए राजीव गांधी का जो इशू है, a lot of people are asking कि मतलब राजीव गांधी was assassinated more than almost 30 years ago. Why is Rajiv Gandhi an issue in 2009 in the 2019 election? देखो, प्रधानमंत्री को चोर है, 56 गालियां, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 56 भोग। आप 56 गालियां दी तो एक्शन और रिएक्शन में ये होता है, एक्शन रिएक्शन। हाँ, क्योंकि आप प्रधानमंत्री चोर है करके कहते हो, ये गलत, ये सही है क्या? आप सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगते हो। देखिए क्या होता है, जब तुम एक बात बोलते हो तो तुम्हारी बात नहीं बोलते हो, फिर उसका जवाब मिलता है तो फिर तुम चिढ़ जाते हो।
आखिर ये कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से चुनाव का स्तर नीचे गिरा दिया। But is it right to target a dead man who is not there to defend himself, to say that he died as भ्रष्टाचारी number 1? ठीक है, आप उसके रिकॉर्ड को एनालाइज कीजिए, but do you think that is language that behoves the prime minister's stature? देखिए, पहली बात मैंने कहा ना कि एक्शन एंड रिएक्शन होती है। मोदी जी को इतनी गालियां दी गई, अभी आप ये बताइए, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं चाटा मारूंगी, क्या ये क्या है? नहीं, गलत है, आप ठीक कह रहे हैं। क्या होता है, आखिर इंसान होता है ना, वो भी जवाब देते थे। लेकिन आज के प्रचार में राजीव गांधी की बात करना, when who is not alive, who is not relevant to this election, why is he being made an election issue? अब देखिए, वो ये जो INS विराट की बात हुई, former Navy chiefs and the commander of that ship are all saying this is not true, this was an official visit by the Prime Minister, Sonia Gandhi's family was not there, only Rajiv, Sonia and Rahul were there. तो क्या प्रधानमंत्री ने झूठ बोला इस पे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चुनाव के प्रचार के मोड में जब प्रचार में कोई अटैक करता है, झूठी टीका टिप्पणी करता है, तो उसके जवाब में दूसरा आदमी भी कुछ ना कुछ कहते रहता है। ये जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये एक्शन और रिएक्शन का खेल है। नहीं, तो सच और भी मैं तो आपको बोलना इसके ऊपर अपना मत बताता हूँ कि इंडियन डेमोक्रेसी के स्टेक होल्डर 4 हैं: जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव विंग, मीडिया और लेजिस्लेटिव विंग। हम चारों मिलकर इसमें गुणात्मकता लाकर हम कोशिश करें कि चुनाव के स्तर को ऊंचा ले जाए, पर एक साइड से नहीं होगा। सभी लोगों ने अगर तय किया, चारों लोगों ने। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने कल बताया, मैंने दिल्ली मेरठ हाईवे लगभग बना दिया, 14 लेन का रोड है, उसको कभी नहीं दिखाते। एक आधा गड्ढा पड़ गया तो उसका फोटो बार बार दिखाते हैं। जितनी पॉजिटिव बात करते हैं हम लोग, मैं मेरे भाषणों में पूरी पॉजिटिव बात करता हूँ डेवलपमेंट की, कोई छापता नहीं। जब कंट्रोवर्सी होती है तो दिन भर आप अब जब प्रधानमंत्री कहेंगे कि राजीव गांधी ने he went on vacation using the INS विराट, तो it will become a headline, but former Navy chiefs are saying that that was not true. आप कह रहे हैं कि प्रचार में कभी कभी होता है ऐसे, but he is the Prime Minister of India, he must speak facts, no? देखिए, पहली बात तो मैंने जो कही ना आपको कि एक्शन और रिएक्शन में ये चुनाव के प्रचार में ये फिर बढ़ते जाता है। उनके ऊपर जिस प्रकार से अटैक किया, गालियां दी गई, ये उचित है क्या? 56 गालियां दी गई, मैंने कल लिस्ट दी प्रेस में। आखिर प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं है, प्रधानमंत्री देश के हैं, तो देश के प्रधानमंत्री का भी सम्मान तो करना चाहिए। और इसलिए ये चुनाव के माहौल में फिर एक्शन रिएक्शन होती है, स्वाभाविक है वो। नहीं, लेकिन फिर anyway, I'm making the point that it has to be based on facts and so on. लेकिन गडकरी जी, अब ये बताइए about the BJP itself. We saw this whole controversy also with Mr. Advani and Murli Manohar Joshi, and Mr. Advani not getting a ticket from Gandhinagar, and he also gave his own message to the party in his own way through his blog. क्या आप इससे सहमत थे, the way it was handled by the party? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अडवाणी जी, जोशी जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, गाइड एंड फिलोसोफर है, बड़े नेता है। मुझे बताइए, आखिर उनके एज फैक्टर भी हर आदमी के जीवन में होता है। आप मुझे बताइए, आप बहुत अच्छी एंकर है एनडीटीवी में, तो आप 70 साल की होगी तो आप यही काम कर सकोगे क्या? पता नहीं। अभी है कोई 70 साल के एंकर है आपके यहाँ? कोई है एक्चुअली, डॉक्टर प्रणॉय रॉय। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं जॉब में कहीं ना कहीं एज फैक्टर भी होता है। हमारे पार्टी में निर्णय लिया गया कि 75 साल के ऊपर हम नहीं टिकट देंगे। तो फिर अडवाणी जी नाराज क्यों हैं? नहीं, नाराज नहीं हुए, कहाँ नाराज जताई उन्होंने? तो आपने उनका ब्लॉग पढ़ा? मैंने पढ़ा। कोई मैसेज नहीं था पार्टी के लिए उसमें? नहीं, ये जो लोग हमारे विरोधी है वो उसमें से निगेटिव मैसेज निकालते हैं, जो लोग हमारे समर्थक है वो उससे पॉजिटिव मैसेज निकालते हैं। ये देखने का नजरिया होता है जी। लाल गागल लगाया तो दुनिया लाल दिखती है, पीला लगाया तो पीली दिखती है। नहीं, मगर जैसे आप सीरियसली मैं आपको पूछूं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा है जो आपकी पार्टी छोड़ के ही इज गॉन टू द कांग्रेस। अब शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं द पार्टी इज अ वन मैन शो एंड अ 2 मैन आर्मी, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ मर्मर्स विद इन द बीजेपी। देखो, मुझे बताइए, ये कौन सी बात है? क्या ये वन मैन पार्टी नहीं है? उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी से खड़ी है, वो कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं। मुझे बताइए, इसमें यानी ये पॉलिटिक्स ऑफ अपोजिशन है। अगर उनको मंत्री बनाते तो अच्छा रहता, यही बात है ना। देखिए, प्रश्न ऐसा है, उनको जो कुछ कहना है वो कहने का अधिकार है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब चर्चा होकर निर्णय होते हैं।
और आज भी हम अपनी बात को कहते हैं वहाँ। Do you think that the election though has become completely about Mr. Modi and his personality? देखिए, पार्टी और नेता जैसे रेलवे के डब्बे में दो उसके जो चक्र होते हैं उसी प्रकार का है, उसके दोनों के बीच में एक संतुलन होता है। अगर पार्टी बहुत स्ट्रांग रही और नेता वीक रहा तो भी जीत नहीं पाते, नेता बहुत स्ट्रांग रहा और पार्टी वीक रही तो भी जीत नहीं पाते। हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे पास नेता भी अच्छा है और पार्टी भी स्ट्रांग है और दोनों को मिलकर हम काम कर रहे हैं। But is it good for your party and for democracy for it to be completely centered around one person? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। एज ए नेता करके उनके पास सेंटर हुआ है। देखिए, हमारी पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी भी लोकप्रिय नेता थे। पार्टी कभी वाजपेयी जी की नहीं बनी, कभी अडवाणी जी की नहीं बनी। हमारी पार्टी कोई परिवार की नहीं बनी है। मैं अध्यक्षता मेरी नहीं बनी, अमित शाह बने उनकी नहीं बनी, मोदी जी की भी नहीं बनी। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की है, इसकी विचारधारा स्पष्ट है और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रवाद, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एंड अंत्योदय, ये हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन है। हम विचारधारा के आधार पर So the party is of the कार्यकर्तास, the workers, not of individuals. That's what you're saying. नहीं, हमारे पार्टी का मोदी जी भी यही बात रखते हैं कि हम इस देश के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। ही इज द लीडर, हम सबके नेता वो, इसलिए स्वाभाविक उनका नाम सामने है ही। तो संगठन और नेता दोनों मिलकर ही राजनीति चलती है और निश्चित रूप से वो हमारे नेता है। पर नेता है इसका मतलब ये पार्टी उनकी है, जैसे कांग्रेस पार्टी है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सब एक ही परिवार के सदस्य ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। हमारे ऐसा नहीं है। आपको 1000 बार ये सवाल पूछा गया है मगर मैं फिर भी पूछ लूंगी, और ये है कि अगर स्थिति ऐसी हुई इलेक्शन के बाद दैट द बीजेपी's numbers are a little different from what they were in 2014, you could be a dark horse for the prime minister's post. मैं कोई डार्क हॉर्स नहीं हूँ, मैं बहुत बार ये मे बी अ व्हाइट हॉर्स। मैं ये क्लियर कर चुका हूँ कि ये क्वेश्चन ही रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मेजोरिटी मिलेगी और मोदी जी हमारे नेता है, वही देश के प्रधानमंत्री होंगे। न मेरा प्रधानमंत्री बनने का कोई एजेंडा है, न मेरी इच्छा है, न मैं कोई सपना देखता हूँ। फाइनली मिस्टर गडकरी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ राहुल गांधी एंड हिज लीडरशिप? अगर आप उनका एक रिपोर्ट कार्ड लिखेंगे। और गंभीरता से लीडरशिप करनी चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए और उनको माफ़ी मांगने का समय नहीं आना चाहिए, ऐसी बात बोलनी चाहिए। यही मेरा उनको फ्रेंडली सलाह है। ओके, मिस्टर गडकरी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन एनडीटीवी टुडे। ऑलवेज नाइस टू टॉक टू यू। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। दो 2016 में प्रधानमंत्री ने बहुत धूमधाम से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। कहा गया कि इस देश के गरीबों को धुएं और घुटन से निजात दिलाई जा रही है। इस योजना का लाभ 7 करोड़ घरों तक पहुंचने की बात कही गई। यह भी कहा गया कि योजना यूपी के चुनावों में, विधानसभा चुनावों में गेम चेंजर साबित हुई। लेकिन 3 साल के भीतर एक और सच्चाई नजर आ रही है। घरों में गैस सिलेंडर है, पहुंच गया है, वो खाली पड़ा है, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वो उसको नियमित रूप से भरवा सकें। हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने बलिया जाकर उन लोगों से बात की जिन्हें इस योजना का चेहरा बनाया गया था। जिस महिला को प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से गैस सिलेंडर सौंपा था, वो हर सुबह कोयले, लकड़ी से अपना चूल्हा जलाती है। आलोक की इस रिपोर्ट को ध्यान से देखना चाहिए। ये भी रिपोर्ट सामने आती है उज्ज्वला योजना के तहत कि जिन लोगों को सिलेंडर दिया गया है उनके बीच दोबारा सिलेंडर लेने का अनुपात बहुत कम है। और अगर आप किसी सिलेंडर वितरक से बात करें कि 2016 से पहले उनके पास कितने ग्राहक थे, मान लीजिए 10,000 ग्राहक थे, वो अब 20,000 ग्राहक हो गए। और 2000 के पहले 10,000 ग्राहक में से अगर 8,000 ग्राहक ऐसे हैं जो नियमित रूप से रिफिल कराते हैं, तो ऐसे ग्राहकों की संख्या 2016 के बाद कितनी बढ़ जाती है? तो बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं है, बल्कि कई वितरक बताते हैं कि वो समान ही है। बलिया की गुड्डी देवी एक ईंट भट्ठा मजदूर की पत्नी हैं और 3 बच्चों की मां। 2016 में उन्हें प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस जिले में एक कार्यक्रम में उन्हें यह सिलेंडर सीधे प्रधानमंत्री के हाथों से मिला।
3 साल बाद जिले के इस जिगनी खास गांव में उज्ज्वला योजना का चेहरा बनी गुड्डी देवी अब भी हर सुबह खाना पकाने के लिए कोयले और लकड़ी से अपना चूल्हा जलाती हैं। गुड्डी कहती हैं कि परिवार हर महीने सिलेंडर भराने का खर्च नहीं उठा सकता और पुराना चूल्हा जलाना सस्ता पड़ता है। बलिया में आखिरी दौर में वोट डाले जाने हैं, लेकिन भले ही उज्ज्वला योजना से गुड्डी देवी को बहुत मदद ना भी मिली हो, वो कहती हैं वो मोदी जी के साथ हैं। गुड्डी देवी की पासबुक देखी और ये बहुत हाई प्रोफाइल इनको उज्ज्वला योजना कनेक्शन मिला था, मोदी जी ने खुद इनको दिया था। आप अगर देखें कि इनका जो रिफिल रेट है वो करीबन 3 से 4 सिलेंडर प्रति वर्ष का है। 2016 में 3 बार इन्होंने रिफिल कराया, 2017 में 4 बार, 18 में फिर 3 बार और 19 में अभी तक 2 बार करा चुकी हैं। तो शायद एक चीज तो सरकार से आप अपेक्षा करेंगे वो यही है कि ऐसी स्थिति कैसे आए कि गुड्डी जी जैसे लोग हर 1 महीना या 1 महीना नहीं तो हर 2 महीना कम से कम अपना सिलेंडर एक बार रिफिल करवा पाए। पैसा कम कर दी वहाँ के तब ना भरवा पाई। वो पैसा रही तो भरवाई, ना पैसा रही तो ना भरवाई। हमारे पास पैसा रही तो ना भरवाई, ना पैसा रही तो कहाँ से भरवाई। अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई देखो, आपको हर महीना गैस भरवाई। कहा कि हमके कम कर दी तब ना, हमके फ्री कर दी है ना भाई। अभी भी आप लोग मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं या आपको लगता है कि मतलब? जी हाँ, ऐसा बात थोड़े बात मोदी जी को उठना दिया ही। जो गैस एजेंसी है वो गढ़वार में गुड्डी के घर से 3 किलोमीटर दूर है। उसे 25 गांव के 1000 घरों में उज्ज्वला कनेक्शन की जिम्मेदारी मिली हुई है। इनमें गुड्डी देवी का कनेक्शन भी है। एजेंसी के कर्मचारी कहते हैं पहले मुफ्त गैस सिलेंडर के बाद शायद ही कोई नियमित गैस सिलेंडर भरवाता हो। वो रेट सर 15 से 10% से 15% के बीच में है। मतलब मंथली रिफिल कह रहे हैं आप? जी, एवरेज आपका 10 से 15% लोग हर महीने रिफिल करवा रहे हैं। और मोटा मोटी कितने महीने पे एक बार रिफिल हो रहा है सर आपका उज्ज्वला वाला सिलेंडर? उज्ज्वला सर अब ये तो सिस्टम में देखना पड़ेगा, लेकिन 3 महीना 4? हाँ, 3 महीने पे 4 महीने पे बहुत कम लोग हैं। जी, अच्छा। कुछ कस्टमर रेगुलर लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते हैं। अच्छा, इसका क्या कारण मानते हैं आप सर? उसका सर कारण वही है, उनके पास आर्थिक अभाव है, दूसरा विकल्प है। दूसरा विकल्प मतलब कंडा कह रहे हैं? जी, कंडा है, उपला है। ये सब तो आप लोग सर ये स्कीम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपका कोई सुझाव है कि इसको और ऐसा बनाया जा सके कि भाई और लोग रिफिल कराएं? कोई ऐसा सुझाव आपका, क्योंकि आप लोग तो लोगों से बात भी करते होंगे, देखते भी होंगे, जनता से भी आपका इंटरेक्शन होता है, गैस भी आप ही दे रहे हैं, कोई ऐसा सुझाव आपका जिससे और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाए स्कीम? इसका सर यही होगा कि रेट जितना कम से कम रहे ताकि सभी लोगों को सुलभ रहे। हर गांव में लगभग यही कहानी है। कलावंती कनौजिया और उनकी बहू पिंकी को 2 साल पहले अलग अलग सिलेंडर मिले। वो दोनों 2 परिवार चलाती हैं। दोनों के पति ईंट भट्ठे में मजदूर हैं। दोनों का कहना है कि वो इतना नहीं कमाते कि हर महीने सिलेंडर भरवा सकें। हर दिन आप सिलेंडर पे बनाए, ऐसा दिन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, हर दिन ना बनाए हम भाई। चूल्हो पे हमारे तो चूल्हो पे पका सके नहीं। क्यों? अब इतना 4 गो परिवार बड़ा सा तो वैसे सिलेंडर पे ना पाके लगी तो कहाँ से महीने में 15-20 दिन में खत्म हो जाए तो भरवाओगे। मोदी जी तो कह रहे हैं वो यही चाहते हैं कि आप लोग चूल्हा छोड़ दें। सरकार जी कह दी फ्री में तो बनेबे करम जा दोनों बेरा। फ्री में कैसे देगी दीदी, आप ही बताइए। तो घर से पैसा लगे तो हमने महीना महीना ना भरवाओगे। नहीं हो पाता है। 2018 नवंबर में कई राज्यों में CEEW यानी काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की ओर से कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक खाना पकाने के लिए कोयले लकड़ी का इस्तेमाल करने वाले घरों का अनुपात 2015 में 85% था तो 2018 में घटकर 61% रह गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में 88% घरों का कहना था कि LPG कनेक्शन का इस्तेमाल न करने की वजह इसका महंगा पड़ना है। 2018 में ये तादाद बस 1% घटकर 87% रह गई। बलिया से ही सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी और यहाँ अगर आप गांव में जाएं तो लोग ये तो नहीं कहेंगे कि उज्ज्वला से उनको फायदा नहीं हुआ है। सिलेंडर मिलने से फायदा तो हुआ है, लेकिन जो असली चैलेंज है सरकार के सामने
वो ये है कि ये गांव वाले अपने सिलेंडर्स को रिफिल और करवा पाएं, और जो रिफिल रेट है इन सिलेंडर्स की वो 3 से 4 सिलेंडर्स एक साल से ऊपर उठ के कहीं आगे जाए। बलिया में करुणा सिंधु और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया।